السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ لوگوں کی وائس اوور حیا ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور جیسا کہ میں نے کل جو آپ لوگوں کے لیے ناول وائس اوور کیا تھا وہ کمپلیٹ تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو وہ اچھا لگا ہوگا، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے پھر ایک کمپلیٹ ناول لے کے آئی ہوں، چونکہ یہ اتنا زیادہ لانگ نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ کمپلیٹ ناول آپ کے لوگوں کے لیے آج اس کی ریڈ کروں گی۔ تو جس نے پچھلا ناول نہیں پڑھا تو وہ جا کے پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس ناول کی بیس کیا ہے مجھے خود نہیں پتہ، تو مجھے نہیں آئیڈیا یہ ناول کس طرح کا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی ابھی پڑھنے لگی ہوں، تو پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ کس طرح کا ناول ہے۔ چلے اب بنا وقت ضائع کیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے، تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھے ناول فراہم کر سکوں، اور آپ لوگوں کو پھر نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گی اس طرح اگر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے۔ چلیں ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ ارم کی زندگی میں آنے والی ایک ایسی خوبصورت رات جس کا اسے بے چینی سے انتظار تھا، کیونکہ آج ڈاکٹر زین اس کی زندگی میں ایک آئیڈیل انسان بن کر آئے۔ اگرچہ ڈاکٹر زین ارم سے 20 سال بڑے اور 2 بچوں کے باپ، اور ارم صرف 20 سالہ ابالی جذباتی سی لڑکی، اور اسے لباس میں ملبوس ارم کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تھی بھی اتنی پیاری کہ جو اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ہر راہٹ پر اس کے نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بڑی ہی بے قراری سے اپنے ہمسفر کی منتظر تھی۔ بہت شدت سے چاہا تھا اس نے ڈاکٹر زین کو، اور وہ لمحہ ہی کیا جب سحر انگیز شخصیت کے مالک ڈاکٹر زین کمرے میں داخل ہوئے۔ ارم شرما کر سمٹ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے اپنی پلکوں تلے کیا خواب سجائے بیٹھی تھی یہ لڑکی، لیکن سب الٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر زین نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور ایک سرسری سی نظر ارم پر ڈالتے ہوئے مخاطب ہوئے۔ مجھے رات دیر تک کام کرنے کی عادت ہے، تم سو جاؤ، اور اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ملازمین سے کہہ دینا، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ نہایت ہی لاپرواہی سے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ارم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آج شادی کی پہلی رات اس کی زندگی میں عذاب بن کر آئے گی۔ وہ معصوم سی لڑکی رو رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ارم نے اپنے ڈیڈی کو کال کرا۔ ہیلو ڈیڈی، کیا ہوا ارم؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ارم کے فادر نے ارم سے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے ڈیڈی، ڈاکٹر زین ارم سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کے روتے ہوئے ہچکیاں بند گئی تھی۔ ارم کے فادر نے ارم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ زین تمہاری پسند ہے، تم زین کی پسند نہیں ہو۔ دیکھو ارم، یہ بات تم بہت اچھے سے جانتی ہو کہ زین تو تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، تم ہی ضد پر اڑی ہوئی تھی، اپنے ہاتھ کی کلائی تک کاٹ لی تھی تم نے۔ حد ہے ارم، تم نے ہم سب کو اتنا پریشان ایموشنل بلیک میل کیا کہ میری التجا پر زین نے تم سے نکاح کیا تھا تاکہ تم اور کوئی نقصان نہ پہنچا سکا خود کو، اور اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ یہ کہہ کر ارم کے ڈیڈی سفتر صاحب نے فون کٹ کر دیا۔ ارم ایک دم غصے میں اٹھی اور ڈاکٹر زین کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ ارم نے ڈاکٹر زین کو نہایت غصے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ ڈاکٹر زین جان بوجھ کر اپنے کام میں مصروفیت ظاہر کر رہے تھے۔ کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے ارم کو۔ جب ارم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر زین اس کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں دے رہے، تو غصے میں آ کر اس نے زور سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ ڈاکٹر زین اپنے آپے سے باہر ہوئے تھے۔ کیا حرکت کی ہے یہ؟ کیا حرکت تھی تمہاری، اور کیا سمجھتی ہو تم اپنے آپ کو؟ بیوی ہو میں آپ کی، سمجھے آپ؟ ہاں ہاں بیوی۔ یہ زبردستی کا رشتہ جو تم نے مجھ پر مسلط کر دیا، میں اس رشتے کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، نہیں آیا کرو تم میرے سامنے، اب جاؤ یہاں سے۔ ڈاکٹر زین غصے میں آگ بگولا ہوئے جا رہے تھے۔ کیوں نہ آیا کروں میں آپ کے سامنے؟ ڈرتے ہیں نہ آپ کہ آپ کو مجھ سے عشق نہ ہو جائے؟ ارم نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر زین کی طرف دیکھ کر کہا، شٹ اپ، چلی جاؤ یہاں سے، ایک سیکنڈ بھی برداشت نہیں کر سکتا میں تمہیں، اب یہاں پر نہیں جاؤں گی، ساری رات ادھر ہی بیٹھ کر آپ کو تکتی رہوں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کب تک آپ اپنا یہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں۔ محبت کی ہے میں نے آپ سے، اور آپ کو بھی مجھ سے اتنی محبت کرنی ہوگی۔ ڈاکٹر زین ارم کی باتوں کو سن کر شدید غصے میں آ گئے تھے۔ ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا ارم، جو تم چاہتی ہو وہ تم کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ میں صرف اور صرف اپنی بیوی سے محبت کی ہے، اور اس کے انتقال کے بعد اس سے شادی نہیں کی، جبکہ میرے دونوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ انہیں اس وقت ماں کی اشد ضرورت تھی۔ بلیک کلر کی خوبصورت کامدانی شرٹ اور گولڈن غرارہ ہم رنگ جیولری آج ارم ہمیشہ کی طرح خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ آج ڈاکٹر زین اور ان کی فیملی اپنے کسی قریبی فیملی فنکشن میں جا رہے تھے۔ تیاری کے بعد ارم اپنے کمرے سے باہر آتے ہوئے بری طرح ڈاکٹر زین سے ٹکرا گئی تھی۔ بے ساختہ ارم کے منہ سے آواز نکلی، اف اللہ! ڈاکٹر زین اسے نہیں تھامتے تو بری طرح گر کر اپنے دانت توڑوا چکی تھی۔ اس وقت وہ پوری طرح سے ڈاکٹر زین کی گرفت میں تھی۔ کچھ دوران ڈاکٹر زین اسے مسلسل ڈانٹ بھی رہے تھے۔ عجیب
वाली लड़की हो तुम, देख कर नहीं चलती, लेकिन इसके तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर जैन को अपने करीब आकर मारे शर्म के इसका बुरा हाल हो गया था। छोड़े ना मुझे प्लीज़। वो अपने आप को डॉक्टर जैन की गिरफ्त से आज़ाद कराते हुए वहाँ से भाग निकली थी। बाबा इरम, मामा को बहुत तेज़ बुखार है, प्लीज़ आप इनको देख लें। लीना ने अपने फादर जैन के कमरे में जाकर बहुत फिक्रमंदी से कहा, तो मैं क्या करूँ, बुखार है इसे। कल रात किसने कहा था इससे बारिश में भीगने के लिए। बाबा प्लीज़ देख लें, वो तकलीफ़ में मुब्तला हैं। वो अलीना, ये क्या इरम, मामा मामा लगाया हुआ है तुम दोनों बहन भाइयों ने। नहीं है वो तुम्हारी मामा, समझी तुम। बाबा इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं आप एक डॉक्टर की हैसियत से ही इनको देख लें, इनको बहुत तेज़ बुखार है। अलीना ने अपने बाबा से इल्तिजा करते हुए कहा। डॉक्टर जैन ने इरम का बुखार चेक किया, 104 बुखार था। से शदीद बुखार होने की वजह से इरम गनूनगी की हालत में थी। डॉक्टर जैन मुसलसल ठंडे पानी की बटिया इरम के माथे पर कर रहे थे। जब बुखार की शिद्दत में कमी आई तो उन्होंने अपने बच्चों अलीना और अरसलान से कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, बुखार कम हो गया है, तुम दोनों भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। कुछ देर के बाद डॉक्टर जैन भी अपने कमरे में जाने के लिए खड़े हुए थे कि इरम ने डॉक्टर जैन का हाथ थाम लिया। नहीं जाएं आप, मुझे इस तरह तन्हा छोड़कर, प्लीज़ रुक जाएं। क्या आपको नज़र नहीं आता मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अब एक पल भी नहीं रह सकती आपके बिना। नहीं जाएं ना, मुझे छोड़कर, मर जाऊँगी मैं आपके बगैर। डॉक्टर जैन का हाथ मजबूती से थामते हुए बोली थी। डॉक्टर जैन काफ़ी हद तक इस मासूम लड़की को देखते रहे। आज रात 12 बजे इरम डॉक्टर जैन के कमरे में जाकर सब से पहले इन्हें सालगिरह मुबारकबाद देना चाहती थी, लेकिन जब डॉक्टर जैन के कमरे में दाखिल हुई तो डॉक्टर जैन सो रहे थे। वो शायद कोई किताब पढ़ते पढ़ते सो गए थे। या अल्लाह, हाय अल्लाह, सदके जाऊँ, आज तो छोटे से बच्चे लग रहे हैं। डॉक्टर साहब चश्मा लगाकर सो गए। वो डॉक्टर जैन को देखकर सोचती हुई, आज तो मैं आपको सोए हुए ही दिल भर कर देख सकती हूँ, वरना जागते टाइम आप काटने को दौड़ते हैं। वो बहुत मोहब्बत से काफ़ी देर डॉक्टर जैन को देखती रही। इस दौरान इसने डॉक्टर जैन की कुछ पिक्स भी ली थी। वो मुस्कुरा के सोचने लगी, कितने हैंडसम और कातिल हैं आप। आपके सामने तो आजकल के लड़के भी कुछ भी नहीं है। और बात भी बिल्कुल सही थी। डॉक्टर जैन वाकई एक पुरवकार और सहर अंगेज़ शख्सियत के मालिक थे। जब इनको देखते इनकी शख्सियत से मुतासिर हो जाता। इरम ने डॉक्टर जैन का चश्मा उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ताकि वो ईज़ी होके सो सके, लेकिन इसी दौरान डॉक्टर जैन की आँख खुल गई। ये क्या कर रही हो तुम। इरम एकदम से घबराकर पीछे हट गई थी। जी कुछ नहीं, वो मैं डॉक्टर जैन ज़ोरदार आवाज़ में इरम से मुखातिब हुए। इरम बुरी तरह से सहम गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इतनी घटिया हरकत करने की कोशिश करोगी। मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर जैन, मैं तो बस वो आपका। इरम ज़ारों की तार रो रही थी। वो आपसे बोला भी नहीं जा रहा था। देखिए प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने। अच्छा बस सब खामोश रहो। तुम बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें, और तुम जैसी लड़कियों को जो अपनी होश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बहुत हो गया डॉक्टर जैन, क्या समझते हैं आप अपने आप को। मोहब्बत की है मैंने आपसे, कोई सौदाबाजी नहीं की, और मैं सिर्फ आपको सालगिरह मुबारकबाद देने आई थी। कितना गलत सोचते हैं आप। खूब समझता हूँ मैं तुम्हें, और क्या मकसद था तुम्हारा। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम क्या कर रही थी, और सुनो आज के बाद मेरे दोनों बच्चों से कोसों दूर रहना। मैं हरगिज़ नहीं पसंद करूँगा कि मेरे बच्चे पर तुम जैसी लड़की का साया पड़े। बहुत गलत कर रहे हैं आप। इरम ने रोते हुए कहा। ना गेट आउट। डॉक्टर जैन ने चीखते हुए इरम से कहा। वो रोती हुई कमरे से चली गई। पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स पर हल्का सा मेकअप, खुले हुए खूबसूरत बाल। आज तो इरम बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी। सबकी नज़र इसी पर टिकी थी। अलीना और अरसलान डॉक्टर जैन के बच्चे हर साल की तरह आज भी अपने फादर के बर्थडे मना रहे थे। इस बर्थडे पार्टी में डॉक्टर जैन के अजीज़ वकारेब के अलावा उनके साथी डॉक्टर्स को भी मदऊ किया गया था। केक काटने के बाद इरम ने गिफ्ट डॉक्टर जैन की तरफ बढ़ाते हुए इन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी, लेकिन डॉक्टर जैन ने नहायत बेरुखी से गिफ्ट लेकर एक तरफ रख दिया। डॉक्टर जैन के इस रवैये को देखते हुए अलीना ने इरम का लाया हुआ गिफ्ट खोलते हुए कहा, वाह बाबा देखिए इरम, मामा आपके लिए कितनी ज़बरदस्त शर्ट लाई हैं। लेकिन डॉक्टर जैन की दोस्त डॉक्टर राबी ने शर्ट को देखते हुए हंसकर कहा, जैन ये आप पर इतने गहरे कलर कब से पहनना शुरू कर दिए। जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आपको तो हल्के कलर पसंद है ना। डॉक्टर राबी की इस बात पर इरम का दिमाग एकदम से आउट हो गया। तो बेसख्त गुस्से में बोली, राबी आंटी आपको ये कैसे मालूम कि डॉक्टर जैन को क्या पसंद और क्या ना पसंद है। ये आप किस तरह का दावा कर रही हैं। डॉक्टर राबी बीवी से ज़्यादा इसके शोहर को कोई जान नहीं सकता। डॉक्टर राबी बुरी तरह गुस्से में आ गई थी और कहने लगी, मैं जैन को सबसे ज़्यादा जानती हूँ, इतना कि शायद तुम भी नहीं जानती। डॉक्टर आबी ने शायद कर कहा। ओह अच्छा। इरम ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। डॉक्टर साहिबा, जो औरत एक गैर आदमी को इसकी बीवी से भी ज़्यादा जानने का दावा करती है तो आपको पता है इसे हमारा माशरा क्या नाम देता है। और वैसे भी डॉक्टर आबी, ये जान पहचान वाली बात काबिल फ़ख्र नहीं है बल्कि काबिल शर्म है। ये कहकर इरम वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। इरम के इस तरह मुँह तोड़ जवाब से डॉक्टर आबी गुस्से से लाल पीली होकर रह गई थी। डॉक्टर जैन नहायत हैरत से इस लड़की को देखते रह गए। बर्थडे ख़त्म होने के बाद जब डॉक्टर जैन कमरे में आए तो इरम ने डॉक्टर जैन को मुखातिब करते हुए कहा, कौन है आपकी ये डॉक्टर राबी। तुम कौन होती है सब पूछने वाली। डॉक्टर जैन ने बहुत गुस्से में थे, और आज तुमने मेरे फ्रेंड्स की बहुत बेइज्जती की है। तुम मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करो इरम, और तुम होती कौन इज्जत आने वाली। बीवी हूँ मैं आपकी, और जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती किसी गैर औरत को मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
जब कोई आपको मुझसे ज़्यादा चाहने का दावा करता है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त जब कोई आपकी तरफ देखता है, मुझसे नहीं होता बर्दाश्त जब कोई आपसे बात करता है, बस खामोश हो जाओ और यहाँ से जाओ। मुझे तुम्हारी इन बेकार की बातों में कुछ भी दिलचस्पी नहीं है और मैं तुमसे पहले भी कहा था कि मत आया करो मेरे सामने। क्यों ना आया करूँ आपके सामने? डरते हैं ना आप डॉक्टर ज़ैन? आपको डर है कि कहीं आपको मुझसे मोहब्बत ना हो जाए? इरम ने डॉक्टर ज़ैन की आंखों में डालकर कहा, क्यों इतना घबराते हैं आप मोहब्बत से? बोल क्यों नहीं देते कि आपको मुझसे मोहब्बत है? क्यों भाग रहे हैं दूर मुझसे आप? लेकिन एक बात याद रखिएगा डॉक्टर ज़ैन, आप रोएंगे मेरे लिए, बहुत रोएंगे और एक दिन आप खुद अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। ये बोलकर रम वहाँ से अपने कमरे में चली गई। रम की इस तरह की बातों से काफ़ी देर डॉक्टर सकते की हालत में खड़े रहे थे। वो जितना इस लड़की से दूर रहना चाहते थे, इतना ही लड़की इसके करीब आ रही थी। डॉक्टर ज़ैन, क्या आज रात मैं आपके कमरे में सो सकती हूँ? रम बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। रम के साथ में कंबल और तकिया देकर डॉक्टर ज़ैन ने फ़ौरन गुस्से में कहा, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? ये आज तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? दिमाग तो सही है मेरा। बस वो ना मेरे कमरे में उड़ने वाला बड़ा सा लाल बेग आ गया है, भाग ही नहीं रहा। रम ने मासूम सा मुंह बनाकर डॉक्टर जैन से कहा, बेकार की बातें बंद करो, जाओ अपने कमरे में। बच्ची नहीं हो तुम जो इतनी मामूली से कीड़े से डरती रहो। हाँ, मुझे डर लगता है इस मामूली से कीड़े से और आज मैं अपने कमरे में बिल्कुल नहीं सो सकती। आप कल आप स्प्रे करवाइए मेरे कमरे में। ये बोलते हुए रम ने अपना तकिया डॉक्टर जैन के बेड पर रखा और कंबल लेकर लेट गई। जब डॉक्टर जैन ने रम को अपने कमरे में लेटते हुए देखा तो गुस्से से आकर रम के ऊपर से कंबल हटाकर दूर फेंका और चीखते हुए बोले, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? जाओ अपने कमरे में, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? रम ने कंबल उठाते हुए कहा, डरती हूँ मैं लाल बेग से? क्या आप इस बात का मजाक समझ रहे हैं? और आपके बच्चे क्या समझेंगे? बीवी हूँ मैं आपकी। वो फला डॉक्टर साहब कितना डरते हैं आप मुझसे? रम ने मुस्कुराकर डॉक्टर जैन को देखा और अपना तकिया डॉक्टर जैन के बराबर में रख दिया। अब अभी वो लेटी भी ना पाई थी कि जैन थोड़ा सा दूर खिसक गई। ये देखकर रम की हंसी छूट गई। क्या हो गया है आपका डॉक्टर जैन? आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं कुछ चुड़ैल हूँ और आपको खा जाऊंगी। डॉक्टर जैन की इस हालत को देखते हुए रम ने कुशन उठाकर अपने डॉक्टर जैन के दरमियान में रख दिया। अब ठीक है ना डॉक्टर जैन, अब खुश हैं आप? अब आपको डर नहीं लग रहा ना मुझसे? डॉक्टर जैन की किसी बात का जवाब दिए बगैर कंबल ओढ़कर गुस्से में लाल पीले हुए सोने की नाकाम एक्टिंग करने लगे। आज रम हर तरह से डॉक्टर साहब को परेशान करने की ठानी हुई थी। रम ने डॉक्टर साहब को चिढ़ते हुए कहा, डॉक्टर साहब क्या सो गए हैं आप? डॉक्टर जैन ने रम को किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने रम को नज़रअंदाज करते दूसरी तरफ करवट ले ली। सुबह नाश्ते की टेबल पर अलीना, अरसलान, डॉक्टर जैन और इरम थे। डॉक्टर जैन मुसलसल इरम को गुस्से में घूरते जा रहे थे। इरम बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोककर बैठी थी। इरम ने डॉक्टर को मज़ीद परेशान करते हुए कहा, क्या हो गया डॉक्टर जैन? और आपकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कल रात आप सही से सोए नहीं? डॉक्टर ज़ैन बच्चों के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे। इरा, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर ज़ैन ने रम को अपने कमरे में आने का कहा तो खुशी और शर्म के मारे रम का चेहरा गुलाबी हुआ था। उसने जल्दी से हल्का सा मेकअप किया और डॉक्टर ज़ैन के फेवरेट कलर का ड्रेस पहनकर कमरे में पहुंची। मैं आ गई डॉक्टर साहब, रम ने खुशी से कहा। एक नज़र डॉक्टर ज़ैन ने से रम को देखा और बोले, तुम किसी फंक्शन में जा रही हो? नहीं तो? रम ने फ़ौरन जवाब दिया। तो फिर इतना तैयार क्यों होकर फिर रही हो? क्या रम? अरे वो तो मैं इसलिए बन सवर के आई हूँ कि आपने मुझे बुलाया था ना। इरम ने मासूमियत दिखाते हुए कहा। धोती है? डॉक्टर जैन ने अपना सर हिलाकर कहा। अच्छा इधर आओ, बैठो। इरम परेशान थी कि आज आखिर ऐसी क्या बात है? डॉक्टर जैन ने इरम से खाते हुए देखो। इरम ने मजाक में जवाब दिया। इरम, मजाक नहीं हो रहा, आज कुछ सीरियस बातें होंगी। सॉरी डॉक्टर जैन। इरम, मेरी और तुम्हारी इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मुझसे शादी का फ़ैसला एक जज़्बाती फ़ैसला था, क्योंकि अक्सर तुम्हारी उम्र के लोग जज़्बात में आकर ऐसा कदम उठाते हैं और फिर इसे मोहब्बत का नाम दे देते हैं। तुमने भी ऐसा ही किया। समझ रही हो ना मेरी बात? डॉक्टर ज़ैन इरम की तरफ देख रहे थे। इरम, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, तलाक के पेपर बनवाने को दे रहा हूँ। तुम भी समझ गई होगी ये सब तुम्हारी वक्ती मोहब्बत है। और रहा सवाल मेरा, तो मुझे तुमसे मोहब्बत कभी नहीं थी। तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। तुम्हें बहुत अच्छा लड़का तुम्हारी ही उम्र का मिल सकता है, तो बस बोलिए आपने। डॉक्टर साहब, इरम ने गुस्से में कहा। हाँ इरम, तुम गौर करना मेरी बातों पर, अब जाओ। जैन, आज आपको भी मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। मेरा ये फैसला दुनिया वालों या आपकी नज़र में जज्बाती ज़रूर होगा, लेकिन जैन, मेरी तो ये मोहब्बत है अब मेरी रूह में शामिल हो चुकी है और मैं इस मोहब्बत को अपने वजूद से दूर करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने हमेशा मुझे नज़रअंदाज किया, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत कभी कम नहीं होगी और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अगर ज़िंदगी किसी मोड़ पर आपके बगैर रहना पड़ा तो ये रम सिर्फ और सिर्फ एक ज़िंदा लाश की तरह नजर आएगी। आपकी कसम, मर जाइए रम, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस इसी तरह रहने दें आप मुझे अपने साथ। सारी ज़िंदगी में आपको देखकर गुजार लूँगी और अब तो मेरे दिल में आपके लिए इज़्ज़त और एहतराम ज़्यादा बढ़ गया है। जैन, कल रात आपके साथ एक ही कमरे में रही हूँ, लेकिन आपने तमाम हुकूक हासिल होने के बावजूद भी मुझे हाथ नहीं लगाया, वरना क्या कुछ कर सकते थे कल आप रात को। जैन, मोहब्बत उम्र यहाँ
वैसे आप नहीं देखती है तो बस हो जाती है, मैं तो दीवानी हुई जा रही हूँ आपके लिए, और आप हैं कि मुझे अपने आप से दूर करने की बातें कर रहे हैं। इरम प्लीज़ खामोश हो जाओ तुम। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ज़ैन ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, झूठ बोल रहे हैं आप, क्या यही बात आप मेरी आँखों में देख के बोल सकते हैं? हाँ, मुझे तुमसे कोई लगाव या मोहब्बत नहीं है और मैं तुम्हें किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहता। ज़ैन ने इस बार लहजे में इरम को देखते कहा, अगर ऐसा नहीं है ज़ैन, तो फिर आप मेरी तरफ देखकर क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या आपको ज़रा सी भी मैं अच्छी नहीं लगती? इस गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर राबी का फ़ोन आ जाता है। राबी, मैं बस पहुँच रहा हूँ, कुछ देर में। ओके। कहाँ जा रहे हैं आप? आप डॉक्टर राबी के साथ? इरम ने ज़ैन से पूछा। डॉक्टर डिनर पर जा रहा हूँ कुछ फ्रेंड्स के साथ। एक बात पूछूँ ज़ैन आपसे? क्या बात? आप डॉक्टर राबी से मोहब्बत करते हैं? यार, मेरे पास तुम्हारी इस बात का कोई जवाब नहीं है। ज़ैन ने इरम की तरफ देख कर कहा, अब जाओ तुम। इरम अपने कमरे में आकर फूँ फूँ कर रोने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी ज़ैन को किसी और के साथ। आज डॉक्टर ज़ैन के दोस्त का बेटा दुबई से बिजनेस के सिलसिले में उनके घर कुछ दिनों के लिए रहने आ रहा था। डॉक्टर ज़ैन जब आदिल को एयरपोर्ट से लेकर घर पहुंचे तो आदिल ने ज़ैन अंकल के घर नहायत खूबसूरत और मासूम सी लड़की को देखकर पूछा, अंकल ये लड़की कौन है? आज से पहले मैंने इसे कभी नहीं देखा इनको। डॉक्टर ज़ैन ने इसकी बात को काटते हुए कहा, चलो आदिल, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ। जब आदिल अपना सामान कमरे में रख रहा था तो डॉक्टर ज़ैन ने से बताया कि इरम है और कुछ मंथ पहले इससे मेरा निकाह हुआ है और आप के डैडी को मैंने बताया हुआ है। आदिल को इरम पहली नज़र में बहुत पसंद आ गई थी। उसकी खूबसूरती को देखकर दीवाना हो जा रहा था, क्योंकि इससे पहले इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। नेचर के हिसाब से आदिल एक अय्याश नौजवान था। वो रिश्ते को बहुत गलत नज़र से देख रहा था। वो ये भी बिल्कुल भूल गया था ये मेरे अंकल की बीवी है। डॉक्टर डिनर के वक्त भी वो सबसे इरम को ही देख रहा था। इरम आदिल की नज़र निगाहों से परेशान हो रही थी। इसकी गंदी निगाहों से इरम बहुत कराहत महसूस कर रही थी, इसलिए इरम ने अब वहाँ से बैठना मुनासिब नहीं समझा और उठकर अपने कमरे में आ गई। आदिल ने बहुत जल्द अंदाज़ा लगा लिया कि इन दोनों के रिश्ते में बहुत फासला है और ये दोनों अलग अलग कमरों में रहते हैं। वो हर पल मौके की तलाश में रहता था कि कब इरम इसे अकेले में मिले। इरम भी आदिल की अगली से निगाहों को समझ गई थी, इसलिए वो ज़्यादातर इससे कतराती थी, लेकिन कब तक वो इससे बच सकती थी? आदिल कोई भी मौका जाने नहीं देता था। वो जानबूझकर इरम के कमरे में चक्कर लगाता रहता। कभी वो इरम को चाय बनाने का बोलता तो कभी बेकार के मौजू पर बातें करने बैठता ताकि इरम से बातें करे। इरम आदिल की इन बातों से बहुत परेशान हो गई थी। आखिरकार इरम तंग आकर डॉक्टर जैन से बोल दिया कि जब तक आदिल इसके घर में है मैं आपके कमरे में सो जाया करूँगी। डॉक्टर जैन ने इरम को इसकी बात को कोई अहमियत नहीं थी। आखिर एक दिन वो हुआ जिसका इरम को डर था। इस दिन डॉक्टर जैन हॉस्पिटल में रीना और अरसलान अपने फूफो के घर गए थे। आदिल तो जैसे मौके ही मिल गया था। आदिल इरम के कमरे में गया और कहने लगा, प्लीज़ मेरी ये शर्ट इस्त्री कर दो। इरम आदिल की शर्ट इस्त्री कर रही थी। आदिल ने इसे कहा कि दोस्ती करोगी मुझसे? बहुत अच्छी लगती हो तो मुझे क्या दिमाग ख़राब हो गया है? आदिल, तुम्हारा बहुत दिनों से मैं तुम्हारी इन हरकतों को देख रही हूँ और आज तुमने हद ही कर दी, और मैं सब कुछ डॉक्टर जैन को बता दूंगी। चलो हटो मेरे रास्ते से। इरम ने आदिल की शर्ट इसके मुंह पर मारी। आदिल जोर से हंसने लगा। शौक से बताओ सब कुछ अपने डॉक्टर्स को। क्या मैं जानता नहीं हूँ? वो सिर्फ तुम्हारे नाम के शोहर हैं, इसलिए अब शराफत से मुझसे दोस्ती कर लो और मान लो मेरी बात, हमेशा खुश रहोगी और ये डॉक्टर जैन से भी तुम्हारा रिश्ता चलता रहेगा। वैसे भी तुम्हारे डॉक्टर जैन तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो तुमसे नफरत करते हैं। आदिल ने ज़बरदस्ती इरम को अपने गले से लगाया। ये क्या कर रहे हो? कर रहे हैं आप? आदिल, छोड़े मुझे, प्लीज़ छोड़ दे। इरम आदिल की गिरफ्त से निकलना चाहती थी। उसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को आज़ाद करना नहीं पा रही थी। वो बहुत रो रही थी अपनी बेबसी पर। इसी दौरान डॉक्टर जैन घर में दाखिल हुए थे। इस दौरान डॉक्टर जैन घर में दाखिल आदिल ने इरम से कहा, अगर तुमने जैन अंकल को कुछ भी बताया तो तुम अपनी बर्बादी की जिम्मेदार खुद होगी, क्योंकि वो मुझे तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हें ज़रूर तलाक देकर घर से बाहर निकाल देंगे, और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो। वो तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करते। ये बोलकर आदिल इरम के कमरे में से भाग गया। इरम ने आदिल के जाने के बाद सोचा कि मैं आज डॉक्टर को सब बता दूंगी, क्योंकि वह एक और बास लड़की के हाथों खिलौना बनकर गुनाह की ज़िंदगी हरगिज़ नहीं गुनाना चाहती थी। बाकी फैसला इसने अल्लाह पर छोड़ दिया था। वो डॉक्टर जैन के कमरे में पहुंची। इसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। डॉक्टर जैन ने तमाम बातें इरम की सुनने के बाद आदिल को अपने कमरे में बुलाकर सारा माजरा पूछा तो वह साफ मुकर गया और बोला, अंकल, आपकी ये बज़ाहिर खूबसूरत बीवी दरअसल एक वहशी लड़की है। ये तो मुझ पर पहले ही से ये दौड़े डाल रही थी, लेकिन मैं तो इसे समझा रहा था और आपसे मैंने आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया आपकी बीवी बद किरदार है, क्योंकि मैं ये नहीं जानता कि आपका घर ख़राब हो। आज तो इस लड़की ने तमाम हद पार कर दी थी। अंकल, मुझे तो शर्म आ रही है आप सबको बताते हुए। इसने मुझे गुनाह की दावत दी थी। इसने मुझसे कहा कि मेरा शौहर सिर्फ नाम का शौहर है और ये अपने हौस मुझसे पूरा करना चाहती थी। मैंने जब इनकार किया तो इसने शोर शराबा शुरू कर दिया। आदिल ने इंतहाई यारी से जैन के सामने गलत बयानी से काम लिया था। झूठ बोल रहा है ये, तहमत लगा रहा है, मुझ पर फ़ायदा उठा रहा है। ये मेरे और आपके रिश्ते की दूरी का ये इसकी चाल है। आप मेरा यकीन करें। जैन इरम ने इज़हार की तरह रोते हुए कहा। डॉक्टर जैन ने तमाम बातें आदिल की सुनकर आदिल से कहा, आदिल, अब
तुम जाओ। आदिल के कमरे से जाने के बाद ज़ैन नरम से मुखातिब हुए बोला, हिरम तुम 1 घंटे के अंदर इस घर को छोड़ कर चली जाओ। मैं तुम्हारा वजूद अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आपको मुझ पर ज़रा भी यकीन नहीं है? झूठा है आदिल। आज हिरम को रो रो का बुरा हाल हो गया था। चली जाओ, मैंने कहा ना जाओ। ज़ैन ने चीखते हुए कहा, मेरी बात सुने आप। ज़ैन प्लीज़। जाते हुए धक्के मार कर बाहर निकालूंगा मैं तुम्हें यहाँ से। इरम रोती हुई अपने कमरे में चली गई। घर छोड़ने से पहले इरम ज़ैन के कमरे में आई और बोली, मैं आपके घर से कुछ भी लेकर नहीं जा रही, लेकिन ये सब आपकी तस्वीर मुझे बहुत पसंद है। क्या मैं इसे लेकर जा सकती हूँ? ज़ैन ने कोई जवाब नहीं दिया तो इरम तस्वीर लेकर चली गई। जब इरम डॉक्टर ज़ैन का घर छोड़कर चली गई, डॉक्टर ज़ैन आदिल के कमरे में पहुंचे। अरे अंकल, आपने मुझे बुलाया होता, आपने सहमत क्यों किया? आदिल ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, वैसे अंकल बिल्कुल सही फैसला किया आपने। इरम को घर से निकाल कर इतनी बेहया लड़की को मैंने आज तक नहीं देखा, नहीं देखी। कितना बड़ा धोखा दे रही थी वो आपको। डॉक्टर जैन डॉक्टर जैन ने गुस्से में आदिल से कहा, बस खामोश हो जाओ, तुम हकार इंसान। अंकल ये क्या कह रहे हैं? आप मुझसे सही बोल रहा हूँ। तुम जैसे घटिया लड़की की नज़रों को तो मैं पहले दिन ही समझ चुका था। तुमने एक मासूम और शरीफ लड़की पर इतना शर्मनाक इल्ज़ाम लगाया। जो गुनाह इसने नहीं किया, अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर जैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। दिल ने डॉक्टर जैन से पूछा, अंकल अगर वो इतनी शरीफ लड़की थी तो आपने इसे धक्के देकर बाहर क्यों निकाला? अदिल, तुम अपना दिमाग चलाने की ज़्यादा कोशिश मत करो। बेहतर यही है कि तुम इस घर से निकल जाओ, और मैं तुम्हें इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। बाबा, मेरा मामा कहाँ है? रात को लीना और अरसलान ने डॉक्टर जैन से पूछा। निकाल दिया मैंने इसको, और आज के बाद कोई भी इस घर में इरम का नाम नहीं लेगा, कोई राब्ता नहीं करेगा। ऐसे समझे तुम दोनों। डॉक्टर राबी और जैन के हॉस्पिटल में बाजे। तो जैन, क्या बात है? आज आप बहुत खामोश हैं। कुछ नहीं, बस कोई तो बात है राबी। बस कल घर में प्रॉब्लम हो गई थी। कैसी प्रॉब्लम है? डॉक्टर राबी ने परेशानी से पूछा। राबी, मैंने इरम को घर से निकाल दिया। क्यों ज़ैन? राबी ने हैरत से ज़ैन की तरफ देखते पूछा। फिर डॉक्टर ज़ैन ने तमाम बात राबी को बता दी। ज़ैन की बात सुनकर राबी बोली, ये बहुत गलत कर दिया आपने एक बेगुनाह लड़की को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? मैं आपको इस तरह का इंसान तो बिल्कुल भी नहीं समझती थी। देखो राबी, मैंने इरम के भले के लिए ये सब कुछ किया था। मैं जानता हूँ वो सच्ची थी और आदिल गलत, लेकिन अगर मैं इसकी बात पर यकीन ज़ाहिर करता तो वो मेरे घर से कभी नहीं जाती। वो एक कम उम्र लड़की है, जज्बात में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है, इसलिए ये सब करना ज़रूरी था। डॉक्टर ज़ैन ने राबी को वज़ाहत से समझाया रहा। ज़ैन की बात सुनकर राबी बोली, ज़ैन ये तरीका बहुत गलत अपनाया है आपने। क्या आपको ज़रा भी तरस नहीं आया इस पर? राबी प्लीज़, अब तो तुम मुझे समझो। मुझे इरम से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। वो लड़की बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रही है। वो अपने इस वक्ती एहसास और जज्बात को मोहब्बत का नाम दे रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो दूर रहकर वो समझेगी वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रही थी। कुछ महीने गुजरने के बाद न जाने क्यों डॉक्टर जैन को घर में हर वक्त खामोशी से महसूस होने लगी थी। अगरचे इनके घर में सन्नाटा तो रहता ही था, लेकिन इरम के आने के बाद घर में चहलकदमी ज़रूर हो गई थी। इरम का वक्त बेवक्त जैन से छेड़छाड़ करना, हर रोज़ कोई नई शरारत और ज़ोर से कहका लगाना। इसके अलावा अलीना और सलान से भी इरम की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों भी इरम के साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते थे। इरम के जाने के बाद और अरसलान अपने कमरे में महदूद होकर रह गया था। ज़िंदगी पहले की तरह खामोश हो गई थी। न जाने क्यों ज़ैन को काफ़ी दिनों से बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। वो ना जाने क्यों बार बार इरम के कमरे में तरफ देखता। वो बिल्कुल भी इरम का ख्याल अपने दिल में नहीं लाना चाहता था। वो नहीं सोचना चाहते थे इसे। हद हो गई है ज़ैन, कितनी कॉल्स और मैसेज कर चुकी हूँ आपको, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? फ़िक्र हो रही थी मुझे आपकी। और हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहे आप आजकल? आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे बहुत फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं चली आई आपके घर। कुछ नहीं राबी, बस ठीक हूँ मैं। ज़ैन के लहजे में अफसरदगी थी तो राबी ने भी महसूस की। ज़ैन, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी दोस्त हूँ। अरे राबी, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। ज़ैन, कोई छुपा रहे हैं आप मुझसे? मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। कोई तो बात है। इरम की याद आ रही है आपको? डॉक्टर राबी ने एकदम से सवाल कर डाला। नहीं तो लेकिन आपका हाल देखकर तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आप अपनी बीवी के इश्क में गिरफ्तार हो गए हैं। राबी प्लीज़, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ज़ैन, क्यों आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं? मान क्यों नहीं लेते? आपको इरम से मोहब्बत आखिर किस बात से इतना खौफज़दा है? ऐसी ही क्या बात है जो आपको इकरार मोहब्बत से रोकती है? मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, और मोहब्बत में उम्र देखी नहीं जाती। राबी, इस मौजू पर कोई मैं बात नहीं करना चाहता। तुम एक समझदार लड़की हो और मुझे तुमसे इस तरह की अहमकाना बातों की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। अच्छा, आपको मेरी बातें अहमकाना लग रही हैं तो ये सब क्या है फिर? इरम की दी हुई शर्ट आपके पास क्यों रखी हुई है? ये वही शर्ट है ना जो इरम ने आपको सालगिरह पर गिफ्ट की थी? हाँ राबी, ये वही शर्ट है। अलमारी में से गिर गई थी, मैंने उठा के यहाँ रख दी बस। अच्छा, राबी को ज़हन के इस तरह से बहाना बनाने पर बहुत हँसी आई थी। क्यों हँस रही हो तुम? राबी, ज़हन, आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता ठीक से। मैं तो शर्ट देखकर ये समझी थी शायद शर्ट देने वाली याद आ रही है आपको।
राबी इरम एक जज़्बाती लड़की है। जज़्बात कभी पायदार नहीं होते। ये इसकी वक़्ती मोहब्बत है जो कुछ वक़्त के साथ-साथ आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं इसको अपने आप से दूर कर लिया। ज़ैन ने राबी को समझाते हुए कहा, गलत सोच रहे हैं आप। इरम की आँखों में मैंने आपके लिए बेतहाशा मोहब्बत देखी। आपकी सालगिरह वाले दिन जब वो लड़ पड़ी थी मुझसे, लेकिन अफ़सोस आप इतने दिन इरम के साथ रहते हुए भी वो मोहब्बत देख नहीं सके जो मैंने उन लम्हों में देखी थी। आपको अपनी ज़िंदगी में वापस ले आए हैं हमेशा के लिए। वो आपके लिए खुशी बन के आई है अल्लाह की तरफ से। राबी, मैंने सिर्फ़ अपनी बीवी से मोहब्बत की है। मोहब्बत ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार होती है। ज़ैन, मैं आपकी मोहब्बत की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन इस फ़ज़ूल फ़लसफ़े को भी नहीं मानती कि मोहब्बत सिर्फ़ एक बार होती है। वैसे राबी, इरम तुम पर बहुत शक करती है। ज़ैन ने हँसते हुए कहा, और तुम इसकी तरफ़दारी कर रहे हो। ज़ैन, जब मोहब्बत जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो कुछ इस तरह की कैफ़ियत वजूद में आती है और फिर हमें मालूम नहीं होता कि क्या कर रहे हैं। इरम ने भी कुछ ऐसा ही किया, क्योंकि वह जुनून की हद तक आपसे मोहब्बत करती है, नहीं बर्दाश्त कर सकती वो आपको किसी और के साथ। खैर, ठीक हो जाएगा ये सब कुछ भी, अगर आप इसको ले आ जाते हैं वापस। डैडी उठिए। डैडी, क्या हो गया? इरम, सब खैरियत तो है? आधी रात को तुम रो क्यों रही हो बेटा? सफदर साहब, इरम के फादर एकदम परेशान होकर बोले, डैडी मुझे ज़ैन याद आ रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं होती इनसे दूरी, मैं नहीं रह सकती इनके बगैर, मुझे ले जाए ज़ैन के पास। इरम रोए जा रही थी। क्या पागलपन है इरम? जिस इंसान ने तुम्हें बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया, इस इंसान के लिए तुम आंसू ज़ाया मत करो। भूल जाओ अब इसे, तुम इस ज़ैन को। कल ही ज़ैन से बात करूँगा, वो मेरी बेटी को आज़ाद कर दे। क्यों लटका के रखा हुआ है इसने तुम्हें? नहीं नहीं डैडी, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जुल्म नहीं करे, आप वादा करें मुझसे। इरम ने अपने डैड के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, कि आप चाहते हैं कि मेरी रूह परवास कर जाए, मैं फना हो जाऊँ? डैडी प्लीज़, आप रहने दें इस रिश्ते को ऐसे ही। मैं तो बस एक बार ज़ैन को देखना चाहती हूँ, बस एक बार। इरम ने इल्तिजा करते हुए कहा, देखो इरम, मेरे पास तुम्हारे इस पागलपन का कोई इलाज नहीं है। अब मैं इस सिलसिले में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारे सर पर तो जैसे भूत सवार था। भुगता तुम। फिर हम अपने कमरे में आ जाती है और बेबसी से सोचती है, या अल्लाह, मैं अब क्या करूँ? मोहब्बत ही तो की थी मैंने, कोई गुनाह नहीं किया। क्यों मुझे इस कदर तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा? या अल्लाह, तुम मेरी मदद फ़रमा, मेरी फ़रियाद सुन ले। इरम तहज्जुद की नमाज़ अदा करती है और अपने रब के हुज़ूर गिड़गिड़ाकर दुआ माँगती है और ज़ैन के साथ को हमेशा के लिए माँगती है। वो इतना फूट-फूट कर रोती है कि इसकी खिड़कियाँ बंद हो जाती हैं। ज़ैन अपना मोबाइल उठाते है इरम को कॉल करने के लिए, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि किस मुँह से फ़ोन करो इसे। मैं तो इस मासूम लड़की को घर से निकाल दिया तो शायद अब वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगी, नफ़रत करती होगी वो मुझसे। ये सोच के वो फ़ोन टेबल पर रख देते हैं। ये सब क्या हो रहा है? मुझे क्यों नहीं रह पा रहा मैं इस लड़की के बिना? आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में? क्यों सवार हो रही है ये मेरे हवासों पर? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरी ज़िंदगी में इतना ख़ास हो जाएगा। क्यों आई तुम मेरी खामोशी और तन्हाई में हलचल मचाने? ज़ैन ये सब बातें सोचते हुए परेशान हुआ था। आज इन्हें इरम की वो बातचीत उससे याद आई जब इरम ने इसे कहा था कि वो बहुत रोएंगे आप मेरे लिए। हाँ इरम, मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत है और ये मेरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ के बगैर अधूरी है। मैंने तुम्हें घर से निकाला था और अब मैं अपनी अना को एक तरफ रख कर तुम्हें वापस लाऊंगा। अपनी इस वीराने में कितना खुदगर्ज हूँ मैं कि तुम्हारी बेलौस मोहब्बत को नहीं समझ सका, लेकिन अब मुझसे तुम्हारे बगैर नहीं रहा जा रहा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। इरम के डैडी ज़ैन को फ़ोन करते हैं। ज़ैन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो सफदर, तो मेरी बेटी को तलाक दे दो। बर्बाद करके रख दिया तुमने इसे, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाओगे। बस तुम इसे तलाक दे दो सफदर। अरे क्या हो गया तुम्हें? ज़ैन ने गुस्से से जवाब दिया, क्या इरम की भी यही मर्ज़ी है? हाँ, इरम भी अब यही चाहती है, नफ़रत करती है तुमसे, लेकिन मैं ये सब इरम के मुँह से सुनना चाहता हूँ। मैं आज शाम आ रहा हूँ तुम्हारे घर। ज़ैन को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इरम इसे तलाक चाहती है। ज़ैन ने इरम से मिलने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो ये बात इरम के मुँह से सुनना चाहता था। इरम, मैंने आज ज़ैन को फ़ोन करा है और मैं इसे साफ लफ्ज़ में कह दिया कि वो तुम्हें तलाक दे दे। डैडी, क्या कह रहे हैं आप? आपने ज़ैन से, मैंने आपको मना किया था ना कि आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी मर जाए? अल्लाह ना करे कि तुम्हें कुछ हो। मैं कुछ भी, मैं तो सिर्फ़ ये देखना चाहता हूँ कि ज़ैन के दिल में तुम्हारे लिए ज़रा भी मोहब्बत ही वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। इसलिए तलाक की बात की। आज शाम ज़ैन तुमसे मिलने आ रहा है। सफदर, इरम के डैडी ने खुशी होते इरम को बताया। क्या वाक़ई? इरम ने खुशी से होते अपने डैड से पूछा। हाँ इरम, इरम बीबी, ज़ैन साहब आए हैं। इरम की नौकरानी ने इरम को बताया। क्या ज़ैन आए हैं? वो एकदम खुशी से उछल पड़ी, लेकिन फिर कुछ ही लम्हे में गुस्से की कैफियत में आकर बोली, जाओ इनसे कह दो मैं नहीं मिलना चाहती इनसे। ज़ैन साहब, इरम बीबी नहीं मिलना चाहती आपसे? अच्छा, कहाँ है इस वक्त? जी, वो अपने कमरे में है। डॉक्टर ज़ैन इरम के कमरे में पहुँचे। क्यों नहीं मिलना चाहती तुम मुझसे? एकदम ज़ैन को इतने करीब आकर इरम का दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। इरम ज़ैन को मसनूई गुस्सा दिखाते हुए बोलती, क्यों आए हैं आप यहाँ तुम्हें लेने? ज़ैन इरम की तरफ मोहब्बत से देखते हुए कहता है, नहीं जाना मैं आपके साथ। इरम गुस्से में मुँह मोड़ कर बैठ गई। बहुत तकलीफ़ से गुज़री हूँ मैं आपके बिना। एक एक लम्हा इंतहाई अज़ियत में गुज़ारा है मैंने। आप
لیکن یہ سب کچھ آپ کو کیوں بتا رہی ہوں میں؟ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا زین؟ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا زین؟ اگر آپ کو ذرا بھی فرق پڑتا تو تب مجھے لینے آ جاتے۔ ارم کا غصہ جائز تھا۔ میں یہ سب مسلط کے تحت کیا تھا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی میری خاطر برباد کرو۔ میں جتنا تم سے دور رہنا چاہتا تھا اتنی ہی میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ میں تم میں چاہنے نہ لگوں۔ تمہاری وقت بے وقت شرارتیں اور مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرنا اور تمہارا خوبصورت چہرہ، معصوم چہرہ نہیں فراموش کر پا رہا میں۔ تمہیں تمہارے جانے کے بعد ہر پل تمہاری یاد آئی اور ان خیالات کو دل و دماغ سے جوڑنے کی بہت کوشش کی، مگر میں بری طرح سے ناکام رہا۔ ارم، جب تم سے میرا نکاح ہوا، جن حالات میں ہوا تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو، میں تمہارے اور اپنے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ بہت رویا ہوں میں تمہارے لیے، بہت تڑپا ہوں۔ ایک شکایت تو مجھے بھی تم سے ہے ارم۔ کیسی شکایت؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم میری زندگی میں آ کر محبت سے آشنا کرو؟ یہ سب باتیں تو میری زندگی سے بہت پہلے دور جا چکی ہیں۔ اب گھر چلو، میرے گھر کو بات کر دو۔ وہ بہت تنہا ہو گیا ہوں یار، میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں آج۔ صرف ارم زین کو سننا چاہتی تھی، اس کو زین کا یہ محبت سے بھرپور انداز اور زین کے ایک ایک لفظ میں اپنے لیے محبت ہی محبت دکھائی دیتی تھی۔ اسے تو اس بات کی خوشی تھی کہ زین نے اس کی محبت کو سمجھا۔ کیا سوچ رہی ہو ارم؟ گھر چلو اب۔ اینا اور ارسلان بھی تمہارے بغیر بہت اداس ہیں، وہ دونوں بے صبری سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ارم زین کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ ارم ماما آپ آ گئی۔ ارسلان نے ارم کو دیکھ کر خوشی سے ہوتے ہوئے کہا۔ لینا تو اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ لینا اور ارسلان کی بے پناہ محبت دیکھ کر ارم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارم دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے، زین کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ان کی ویران زندگی میں جیسے چپکے سے باہر آ گئی تھی۔ ارم اپنے کمرے میں چلی گئی اور زین اپنے کمرے میں آج نہ جانے کیوں ارم کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی زین کے کمرے میں جا کے ان سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی۔ وہ بہت حیران تھی کہ آج وہ کیوں نہیں جا پا رہی زین کے کمرے میں۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتی تھی ان کو تنگ کرنے کے، لیکن آج جب ایک نئی نویلی دلہن کی طرح شرما رہی تھی، اور ادھر زین بھی یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آج ارم کیوں نہیں اس کے کمرے میں آ رہی۔ کچھ دیر بعد زین خود ہی اس کے کمرے میں آ گیا۔ ارم انہوں نے آواز دی۔ ارم نے زین کی طرف دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ زین کے ہاتھ میں کمبل اور تکیہ تھا۔ وہ ارم سے بولے، ارم دراصل بات یہ ہے کہ میرے کمرے میں اڑنے والا بڑا سا لال بیگ آ گیا ہے، کیا میں تمہارے کمرے میں سو سکتا ہوں؟ ارم کا مارے ہنسی کے برا حال ہو گیا تو مسکرا کے بول رہی، اتنے بڑے ہو کر لال بیگ سے ڈرتے ہیں آپ؟ آج ارم کو وہ دن یاد آ گیا جب وہ ڈاکٹر زین کے کمرے میں لال بیگ سے ڈر کر سوئی تھی اور انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا تھا۔ زین کتنے چالاک ہیں آپ! ارم مسلسل ہنس رہی تھی۔ پھر زین نے اپنا تکیہ اور کمبل بیڈ پر رکھ دیا۔ ارم، جی زین، کیا تمہیں یاد ہے ہمارے شادی کی سالگرہ ہے؟ جی زین، مجھے یاد ہے اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو بھی یہ دن یاد ہے۔ ارم، میں کیسے بھول سکتا ہوں اس دن کو؟ آج کے دن تو میری زندگی میں اللہ کی طرف سے ایک نیا تحفہ بن کر آئی تھی۔ تمہاری بے لوث محبت نے میرے دل میں تمہارے لیے بے انتہا محبت پیدا کر دی تھی۔ میں ہار گیا تمہاری محبت کے سامنے۔ تم صحیح کہتی تھی ارم کہ محبت عمر نہیں دیکھتی، یہ تو بس ہو جاتی ہے۔ ارم بہت محبت سے زین کو دیکھ رہی تھی کیونکہ آج زین کو ارم کی محبت پر یقین ہو گیا تھا۔ ارم، میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا ہے۔ میرے لیے کون سا گفٹ؟ لو تم خود ہی دیکھ لو۔ زین نے خوبصورت باکس ارم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ واؤ، اتنی خوبصورت کانچ کی چوڑیاں! ارم، مجھے کانچ کی چوڑیاں بہت پسند ہیں اور یہ تمہارے ہاتھوں میں بہت اچھی لگیں گی۔ ارم، کیا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنا سکتا ہوں؟ زین، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں، آپ کا حق ہے مجھ پر۔ اور ارم نے اپنے ہاتھ زین کی طرف بڑھا دیے۔ زین ارم کے خوبصورت ہاتھوں میں چوڑیاں پہنا دی اور ارم کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولے، بڑی دلچسپ غفلت ہو گئی ہے، اچانک تم سے الفت ہو گئی ہے۔ تمہیں کچھ علم ہے کہتی ہے دنیا۔ ارم، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ ہائے اللہ! ارم نے مارے شرما کے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ زین کو ارم کے اس طرح شرمانے پر بہت ہنسی آئی تھی۔ میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ ارم کا شرم سے سرخ چہرہ ہو گیا تھا۔ ارم وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تو زین نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولے، اب میں تمہیں اپنے آپ سے دور نہیں جانے دوں گا۔ دی اینڈ۔ ناول کا نام ہے تم میرے ہو، کرن، اور رائٹر ہیں ہیرا خان۔ ریڈرز، یہ تھا ایک چھوٹا سا ناول۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو یہ اس طرح کا ہے تو میں یہ والا جو ہے اس کی وائس اوور نہ کرتی، کوئی دوسرا کر دیتی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ ناول جو ہے وہ فضول ہے، لیکن اچھا ہے، رائٹر نے لکھا ہے تو جو یہ رائٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ کے ہی لکھا ہوگا۔ ان کے نزدیک ہو سکتا ہے ان کا یہ فرسٹ ناول ہو اور انہوں نے بہت ہی محبت اور چاہت سے لکھا ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہر ایک چیز جلدی بیان کی ہے۔ اگر تھوڑی فیلنگس کے ساتھ تھوڑی ڈیٹیل میں کرتی تو اس ناول کو مزید تھوڑا بہتر بنا سکتی تھی۔ باقی جو ہے وہ
رائٹر نے لکھا ہے، جو بھی سوچ کے لکھا ہے، اور کسی کے لیے اتنا لکھنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جس کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے لیکن اسے لکھنے کا پتہ نہیں ہوتا، تو میرے خیال سے ان کے پاس صلاحیت ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا ہوگا کہ میں نے کس طرح جذبات کو ظاہر کرنا ہے، کس طرح میں نے ڈیٹیل سے ہر ایک چیز کو لکھنا ہے۔ تو جو بھی ہے ہمیں ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں بھی انہوں نے اپنا نیکسٹ ناول یا اس کے بعد والا ناول مزید اچھے طریقے سے لکھا ہو۔ تو آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ امید کرتے ہیں آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ تو کل ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کا ناول پڑھنا چاہتے ہیں، اس طرح کا ناول جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں فراہم کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔